Hi everyone. In this lecture, we will discuss the solution of homogeneous linear differential equation. So this lecture contains all the information about the homogeneous linear differential equation. That is, what is meant by linear differential equation, which is homogeneous. What are the different types of homogeneous linear differential equation included in our syllabus, and how to find the complementary function and particular integral, that is the complete solution of this type of differential equation. So we discuss here in details. So first we learn what is meant by homogeneous linear differential equation. So the differential equation is of the form a0 x raised to the power n dny by dx raised to the power n plus a1 x raised to the power n minus 1 dn minus 1 y upon dx raised to the power n minus 1 plus a2 x raised to the power n minus 2 dn minus 2y dx raised to the power n minus 2 plus up to so on an y is equal to x, where this a0, a1, a2, an are constant and this x is a function of variable x. So if any differential equation is given in this form, then this differential equation is said to be homogeneous. So why it is homogeneous? Why we called this equation as homogeneous? This equation is homogeneous because if you observe this equation, then the order of derivative is equal to the degree of the independent variable multiplied with corresponding differential coefficient. So here the derivative of nth order is present and the power of x is also n. Here the derivative of n minus 1 order is present and the power of x is also n minus 1. So when the differential coefficient, the order of differential coefficient and the power of independent variable multiplied by 8 both are same, then the differential equation is said to be homogeneous. In last step, there is a no derivative involved, means it is a derivative of 0 order. So therefore the power of independent variable is also x raised to the power 0, that is 1. So no derivative involved, no independent variable is present here. So this type of differential equation is said to be homogeneous linear differential equation. This equation is also called the linear differential equation with variable coefficient. Variable coefficient. Why it is called the linear differential equation with variable coefficient? So in previous lectures, we will discuss the linear differential equation with constant coefficient. But when we observe that in the coefficient terms of its differential operator, there is a independent variable involved in this equation. So therefore this equation is said to be variable coefficient because here x is a variable. So in our syllabus there are the two main methods of homogeneous linear differential equation or the linear differential equation with variable coefficient. One type is known as a Cauchy's linear differential equation and the second type is called Legendre's linear differential equation. So this above the equation we will discuss here, it is also called the Cauchy's linear differential equation. So in this lecture we study what is meant by Cauchy linear differential equation, so which is given in above form, that is Cauchy linear differential equation, and here we study in details how to solve
the Cauchy's linear differential equation, that is how to find the complementary function, particular integral, and complete solution by Cauchy's linear differential equation, and we work out some example based upon the Cauchy's linear differential equation. So let's start. With this, that is Cauchy's linear differential equation. So we already discussed the equation of this form, that is a0 x raised to the power n dny by dx raised to the power n plus a1 x raised to the power n minus 1 dn minus 1y of dx raised to the power n minus 1 plus a and y is equal to x. So this equation is said to be Cauchy's linear differential equation. So how to solve this equation? How to solve? Okay. So we already learned how to solve the linear differential equation, but these equations are different from those we are discussed in earlier lecture. We discussed the method for solving a linear differential equation with constant coefficient, but here the coefficient are not constant. So therefore, to solve this type of linear differential equation, we have to convert this differential equation into linear differential equation with constant coefficient. And when we convert this equation into the linear differential equation in constant coefficient, then it is easy to obtain the complementary function, particular integral, by using a previous methods which will be discussed in earlier lectures or in previous lecture. And by finding the complementary function and particular integral, we are able to write the solution, that is a complete solution of this type of differential equation. So here we discuss the method for solving the Cauchy's linear differential equation. So method. Okay. So we have to first convert linear differential equation with variable coefficient into linear differential equation with constant coefficient by using x equal to e to the power z. Okay, so these are the substitution which is used to convert this differential equation, that is Cauchy's or Legendre's linear differential equation, into the linear differential equation with constant coefficient. So when we put x is equal to e to the power z, by taking log on both sides, we get log x is equal to log of e to the power z, which is equal to z log e, which is equal to z, because the value of log e is 1. So we get z equal to log x. Okay, next we have to replace the value of derivative, because the differential derivative or differential operator or derivative present in this equation is of the form d by dx, and by using a substitution we convert this variable x into variable z. So therefore we have to also replace this derivative with respect to x by derivative with respect to z. So let's work on this. So now we know that the differential equation involves this term dy by dx. If this is the first derivative, d2y by dx square. If there is a second derivative present, d3y by dx square. There is a third derivative. So we have to find this value of this derivative in terms of z. So
by using chain rule, here we have to differentiate y with respect to x, and x is also a function of z. So by chain rule, this can be written as dy by dz into dz by dx, which is equal to, now dy by dz can be written as it is, dy by dz, and we have a value for z which is given by log x. So if you differentiate z with respect to x, we get the derivative of log x, which is equal to 1 by x. Now transferring x into another side, we get x into dy by dx is equal to dy by dz, and in symbolic form, this term can be written as d of y, where d equal to or equivalent to d by dz. So here we use a same symbol d which we used in previous lectures, but in linear differential equation constant coefficient we use d for d by dx, and here we use d for d by dz. So from this we first get x into dy by dx is equal to d into y. So we replace x into dy by dx by d into y. This is our first step. Now for the second order derivative, because the equation involves an nth derivative, so we have to find all those values in terms of z or in terms of symbol d. So for second order derivative, we know that what is meant by second order derivative. So for second order derivative, we have to find the values for d2y by dx square. So this can be written as d by dx of dy by dx. Okay, and we already find the value for dy by dx. The value for dy by dx is given by dy by dz into 1 by x. So we replace this value here. So d by dx of 1 by x into dy by dz. Okay, now we have to operate derivative on this bracket, and there are the two terms, because we have to work on derivative with respect to x. So it is a function of x, and y is also a function of x, therefore dy by dx is also a function of x. So here there are the two terms present where the x involved. So to evaluate the derivative of this bracket, we have to use the product rule. Okay, तो प्रोडक्ट रूल जब यूज करना है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का जो फार्मूला है वो यूज करेंगे कि फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी पहली टर्म एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. सो डी बाय डी एक्स ऑफ dy by dz plus second term as it is, that is dy by dz, and derivative of first term, that is derivative of 1 by x. Now we find the derivative of this term. So here's 1 by x as it is. Now we know that here y, so this equation can also be written by using chain rule as d by dz of dy by dz into dz by dx, and in second we have to find dy by dz और डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, तो पहली टर्म हम यहाँ पे इवेल्यूट करेंगे. पहली टर्म इवेल्यूट करने के बाद देखते हैं हम क्या मिलेगा. तो 1 बाय एक्स इन ब्रैकेट, तो इसको इवेल्यूट करने के बाद dy by dz इंटू dy by dz, ये मिल जाएगा आपको d2y by dz स्क्वायर, एंड dz by dx की जो वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी, dz by dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 by x. ये हो गया हमारा 1 by x, और ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू
dy by dz. Okay, so which is equal to, here the bracket here is completed, and this is one of the separate. Okay, now this x into x is x square, and here x square is also present, so taking this 1 upon x square as common, so we get, and this d2y by dz square can be written as d square, here the term is minus d, and taking y as common, it is a value for d2y by dx square. By shifting x square on another side, उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x square into d2y by dx square is equal to d square minus d into y. This can be written as d into d minus 1 of y. So for second term, we get x square d2y by dx square is equal to d into d minus 1 y. Similarly, proceeding in this way, we get x cube d3y by dx cube is equal to d minus 1 d minus 2 into y, and so on. So by using all this value in given differential equation, that is in this differential equation, it is Cauchy's linear differential equation. This differential equation is converted into linear differential equation with constant coefficient. Linear differential equation with constant coefficient, and we already discussed the method how to solve the linear differential equation with constant coefficient. So this is the method to solve the linear differential equation with variable coefficient. So we recap all these things in details in short. So what we have to consider, we have to put in this equation x is equal to e to the power z, so we get z equal to log x. ठीक है, और बाद में जो यूज करेंगे हम यूज करेंगे x d, इसके जगह पे हमको क्या यूज करना है, सॉरी x इंटू dy बाय dx, इसके जगह पे हमको यूज क्या करना है dy, बाद में x स्क्वायर इंटू d2y बाय dx स्क्वायर, अगर ये टर्म आएगी तो इसकी जगह पे हमको यूज करना है d माइनस 1 ऑफ y, एंड सो ऑन. तो ये यूज करके अगर हम उसमें पुट करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो बाय यूजिंग दिस कांसेप्ट we try to solve the question of this type. So solve. So example is x square d2y by dx square plus x into dy by dx plus y is equal to sine of log x. So try to solve this question. So if you observe this question, it is an example for होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव है तो x का पावर भी 2 है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो x का पावर भी 1 है, डेरिवेटिव भी नहीं, x भी नहीं है, और इधर x का फंक्शन है. तो ये जो प्रॉब्लम है ये कौन सा है, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम, कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं. तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड व्हिच इज डिस्कस्ड earlier. So first write down the given differential equation.
So given differential equation is x square d2y by dx square plus x into dy by dx plus y is equal to sine of log x, called as equation number 1. इस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं हम? इट इज अ कॉचीज. सो विच इज कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू e टू द पावर z. सो पुट x इज इक्वल टू e टू द पावर z. इसको z की वैल्यू निकालेंगे आप, तो z की वैल्यू मिलेगी आपको log x. नाउ एंड we already find the values of derivative in terms of operator d, so we just write here. And how to find the derivative? So we will discuss it, the method of homogeneous linear differential equation. तो हमने वहां पर डिस्कस किया है कि वो कैसे निकालना है. यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे. तो हमको यूज क्या करना है? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स अगर है तो आपको लिखना है dy. ओके. अगर x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर है तो यहाँ पे लिखना है हमको डी माइनस वन वाई. वेयर व्हाट इज द वैल्यू फॉर डी? डी मीन्स अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z. और जो प्रॉब्लम है आपके पास, ये प्रॉब्लम में हाईएस्ट टर्म कौन सी है? डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर ही है, तो यहाँ तक ही हमको यूज करना है. तो ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर देंगे. सो इक्वेशन 1 implies, so equation 1 implies, so what is equation 1? The equation 1 is x square into d2y by dx square. So x square into d2y by dx square is equal to d into d minus 1 of y. So we put that value in this differential equation. So d minus 1 y plus second term is x into dy by dx. So x into dy by dx is equal to dy. Last is only y is present, which is equal to, now term on right hand side, sine of log x. And what is the, because we have to change the independent variable x to the independent variable z, so therefore we changes the derivative with respect to x to derivative with respect to z. Means in this topic we have to replace the independent variable z, x by independent variable z. तो x को हमको z से रिप्लेस करना है, तो इसीलिए प्रॉब्लम में जब भी आप कुछ पुट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको जो राइट हैंड साइड की टर्म है वो x के जगह पे z में लिखना है. तो इसको हम z में कन्वर्ट करेंगे अभी. तो log x की वैल्यू कितनी है? z. तो ये क्या मिल जाएगा आपको? साइन z. तो वहां पे आपको मिल जाएगा साइन z. सो विच इज इक्वल टू साइन z. भाई इसको सॉल्व करेंगे हम. मल्टीप्लाई कर दो, y को कॉमन ले लो. मल्टीप्लाई करेंगे तो d इंटू डी हो गया डी स्क्वायर, माइनस 1 इंटू डी इज माइनस डी. यहाँ से मिलेगा हमको प्लस डी, यहाँ पर आएगा प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन z. माइनस डी प्लस डी कैंसल, सो वी गेट डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन z. तो ये हो गया विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो हमने इसके पहले सॉल्व किए थे. सेम वैसा ही इक्वेशन है और आप इसको इजीली अभी सॉल्व कर सकते हैं. तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? सो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, called as equation number 3. Now we first find the value of complementary function and then second find the value of particular integral. So to find the complementary function, so complementary function के लिए क्या चाहिए हमको? auxiliary equation चाहिए. तो auxiliary equation के लिए क्या होना हमको? लेफ्ट हैंड साइड की टर्म चाहिए आपको. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 1 वाई है और राइट हैंड साइड को हम तो जीरो करना है, तो उसको हम जीरो कर देंगे. सो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0. सो डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0.
सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 मतलब आई स्क्वायर, दोनों साइड से अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको प्लस माइनस आई, मतलब यहाँ पे जो रूट्स मिले आपको वो मिले आपको कॉम्प्लेक्स, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रूट्स। ओके, सो व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? कॉम्प्लेक्स रूट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लेते हैं हम? e टू द पावर अल्फा एक्स, एक्स। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x, उसको हमने z में कन्वर्ट किया है, इसलिए यहाँ पर जो x है उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है? z लिखना है। तो यहाँ पर इसकी जगह पे आएगा z, तो आपको मिलेगा e टू द पावर अल्फा z c1, यहाँ पे क्या रहता cos बीटा x, लेकिन यहाँ पे आएगा बीटा z प्लस c2 साइन बीटा z। तो यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है इसको कंपेयर करेंगे अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से, तो अल्फा तो ऑप्शन है, तो अल्फा की वैल्यू होगी 0 और बीटा मतलब आई का कोएफिशिएंट जो हो गया 1, तो e टू द पावर यहाँ पे 0 इंटू z आ गया और यहाँ पर c1 cos z प्लस c2 साइन z। ओके, तो ये आपको मिलेगा e टू द पावर 0 मतलब 1, तो हमारा आंसर रहेगा c1 cos z प्लस c2 साइन z, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसमें आपकी गलती एक ही होती है कि आप यहाँ पे x यूज करते हो, और अगर आपने यहाँ पे x यूज किया z रिप्लेस करने के बाद भी, तो ये आपका थोड़ा प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है, इसके मार्क भी आपको कम मिल सकते हैं। इसलिए ये ध्यान में रखना कि अगर आपने कुछ पुट किया है x इज इक्वल टू e टू द पावर z, तो जो आपका आंसर आएगा वो z के फॉर्म में आएगा, तो आपको इस टाइप का ये आंसर मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, c1 cos z प्लस c2 साइन z। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। So to find a particular integral, okay, so particular integral का फार्मूला आपको मालूम होगा, वही फार्मूला है हमका जो यूज करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स और एक्स। अभी यहाँ पे x की वैल्यू फार्मूले में है लेकिन हमको यूज नहीं करना है, तो एफ ऑफ डी, डी की वैल्यू कौन सी थी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में ली थी हमने, डी स्क्वायर प्लस 1, एक्स मतलब राइट हैंड साइड की टर्म, राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो हमने, हमारी टर्म थी साइन ऑफ लॉग एक्स, तो हमने उसको लॉग एक्स के लिए सेट कर दिया, तो यहाँ पे आएगा साइन जेड। ओके, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आपके पास टाइप 2 था, टाइप 2 इस टाइप का था कि अगर एफ ऑफ डी इंटू साइन एक्स और कॉस एक्स अगर ऐसी टर्म है, तो उसको क्या करते थे हम, डी स्क्वायर को रिप्लेस करते थे हम माइनस ए स्क्वायर से, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो होता था तो केस क्या हो जाती थी, फेल हो जाती है। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये उसी टाइप, उसी केस का रिकॉल है, अगर वो आपको टाइप मालूम है तो आप ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको प्रीवियस केसेस मतलब जो शॉर्टकट केस है, जनरल केस और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये अगर आपको मालूम नहीं है तो आप कॉची और लेजेंडरी का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो आपको पहले वो क्लियर करना है कि उस टाइप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं, तभी आप ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो z का कोएफिशिएंट देख लो, तो z का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो डी स्क्वायर को आपको रिप्लेस करना है, z का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो उसका स्क्वायर कर दो 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और उसको माइनस वहां पे लगा दो मतलब -1, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर की जगह पे अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 प्लस 1 कितना हो गया है 0, और 1/0 इज इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पे आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे। और अगर हमारे पास वो भी केस थी कि अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होता है तो हमको क्या करना है, तो हम क्या करते थे, अगर डिनोमिनेटर जीरो होता था तो यहाँ पर हम x देते थे, फिर नीचे की टर्म जो थी उसका डेरिवेटिव लेते थे एफ डैश ऑफ डी, और यहाँ पर अगेन वही प्रोसेस क्या करते थे हम रिपीट करते थे। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अगेन यहाँ पे x का फंक्शन था इसलिए हमने x दिया, यहाँ पे फंक्शन किसका था, z का है, इसीलिए हम क्या देंगे, अब z देंगे, तो इसका ये टर्म जीरो हो रही, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या दूंगा, यहाँ पे z देंगे हम, z देने के बाद नीचे के टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ट्वाइस डी और साइन z एज इट इज। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे हम, सो विच इज इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज z/2 और 1 अपॉन डी है, तो वी नो दैट डेरिवेटिव डी मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z,
डी का मीनिंग हमने पहले लिखा है, डी का मीनिंग क्या है, डी बाय डी जेड, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। और डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है, इंटीग्रेशन, मतलब 1/d क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये हो गया साइन जेड का इंटीग्रेशन, तो ये आ गया z/2 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड कितना होगा, माइनस कॉस जेड। तो आपको मिलेगा ये माइनस z/2 इंटू कॉस जेड। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो लास्ट में क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब क्या रहता है, कंप्लीट सॉल्यूशन। सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ y, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू कौन सी थी, c1 cos z प्लस c2 sin z, और पर्टिकुलर इंटीग्रल है माइनस, तो ये माइनस हो गया z/2 cos z। अभी बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ तक तो सॉल्व कर देते हैं और यहाँ पे उस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम इनकम्प्लीट है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पर अगर आप इसको वैसे ही छोड़ देंगे तो आपके कम से कम 2 मार्क यहाँ पे कम हो सकते हैं, अगर 6-7 मार्क का प्रॉब्लम अगर है तो। क्योंकि आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो जो हमारा एग्जाम्पल है, जो हमारा प्रॉब्लम है गिवन, वो प्रॉब्लम किस फॉर्म में है वो देख लो आप एक बार। जो हमारा प्रॉब्लम है वो है ये एग्जांपल है हमारा। इसमें वेरिएबल अगर आप देखेंगे तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब आपका जो y का आंसर है वो x के फॉर्म में ही आना चाहिए, और जो हमने आंसर निकाला है वो हमने उसको ट्रांसफर करके निकाला था y का आंसर z के फॉर्म में। तो आपको z को रिप्लेस भी करना है। अभी z को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास z की वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, हमने जो पुट की थी x इज इक्वल टू कितना पुट किया था, e टू द पावर z, मतलब z कितना आया था हमारा log x, तो ये हम रिप्लेस कर देंगे। जहां पर z है वहां पर log z रखो, और जहां पर अगर आपको e टू द पावर z दिखता है डायरेक्ट, तो वहां पे क्या लिखेंगे, हम x लिखेंगे। तो इसका यूज करके आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू c1 cos z, मतलब कितना हो गया अभी log x, प्लस c2 sin z, मतलब कितना हो गया अगेन log x, माइनस z मतलब log x बाय 2 और cos ऑफ log x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉचीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो प्रॉब्लम में क्या है, थोड़ा एक्सटेंशन है कि जो वेरिएबल कोएफिशिएंट था उसको आपको कांस्टेंट कोएफिशिएंट में पहले कन्वर्ट करना है बाय पुटिंग x इज इक्वल टू e टू द पावर z। और एक बार वो कर दिया आपने तो आपके पास ऑलरेडी मेथड है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, जैसे कि हमने शॉर्टकट मेथड देखे थे, जिसमें 5 या 6 मेथड देखी थी हमने शॉर्टकट, जनरल मेथड देखी थी, और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी देखा था। तो ये सारे मेथड आपके पास अवेलेबल है। अगर आपका प्रॉब्लम आप एक बार कन्वर्ट करते हैं तो उस मेथड का यूज करके आप वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वी टेक वन मोर एग्जांपल based upon the Cauchy's linear differential equation. So example is solve r into d2y by dr square plus dy by dr minus y by r is equal to minus ar square. So the nature of this equation is same as the previous one, but the arrangement is different. So we have to first rearrange this equation. So whenever we learn about the Cauchy's linear differential equation, so it must be homogeneous. हमने पहली बात किया था कि Cauchy linear differential equation किस टाइप का होना, आपको homogeneous ही चाहिए। homogeneous मतलब अगर डेरिवेटिव का पावर 2 है तो वेरिएबल का पावर भी कितना चाहिए, आपको 2 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 ही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आप वेरिएबल का पावर नेगेटिव भी है, तो इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, हम इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, राइट डाउन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। So given differential equation is r into d2y by dr square plus dy by dr minus y by r is equal to minus ar square. So here y is a dependent variable and r is a independent variable.
In previous problem, y is a dependent variable, x is an independent variable. So here x is replaced by r. So first of all, we have to make the power of r and the differential coefficient are same. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस r से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो r से अगर मल्टीप्लाई करने के बाद r इंटू आर, मतलब ये हो गया आपका r स्क्वायर. यहाँ पे मिलेगा हमको d2y बाई डी आर स्क्वायर. यहाँ पे r आ जाएगा, यहाँ पर ये आएगा dy बाई डी आर, और r कैंसिल, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा हमको y, और ये हो गया माइनस ए आर क्यूब. क्या किया हमने, r से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. अभी एक बार आप ऑब्जर्व कर दो, पावर टू पावर टू पावर वन पावर वन, डेरिवेटिव अपसेंट आर अपसेंट, मतलब ये हो गया अभी कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हम इसको लिख सकते हैं होमोजीनियस है और कॉची के फॉर्म में है. सो विच इज कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1. तो क्या पुट करने हैं हमको, पहले तो पुट करने हैं हमको, वहाँ पे क्या पुट कर दिया हम, x इज इक्वल टू e टू द पावर z, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था वहाँ पे x था. यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे r है. तो हम पुट करेंगे r इक्वल टू e टू द पावर z. तो आपको मिलेगा z इज इक्वल टू log r. ओके, नाउ फर्स्ट इज r इंटू dy by dr. Its value is given by dy. Then r square d2y by dr square. Its value is d into d minus 1y. एंड और यहाँ पर सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक ही है, इसलिए हमको यहाँ तक ही करना है. अगर थर्ड ऑर्डर मतलब क्यूब का प्रॉब्लम था तो एक टर्म हम यहाँ पे और ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ काम नहीं है ऐड करने का. तो हम ये वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. सो यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट r square into d2y by dr square, we get d minus 1y plus r into dy by dr is equal to dy minus y is equal to minus a and r. So what is the value for r, e to the power z. So e to the power z, r cube means e to the power z cube. So we can solve this equation and find the complete solution, and lastly we have to replace the value for z, variable z. So first solve this equation. So taking y is common and multiply by d in bracket. So d into d square minus 1 into d is d, y is common, plus d minus 1 into y is equal to minus a. This e to the power z cube can be written as e to the power 3z. So this minus d plus d cancel. So we get d square minus 1 into y is equal to minus a e to the power 3z. Okay, so this is the equation which is a linear differential equation with constant coefficient. Now we have to solve this equation, find the complete solution, and then replace the value for variable z. So complete solution is given by complementary function plus particular integral, called as equation number 3. Now first we have to find the complementary function. So to find the complementary function, so we have to use a previous method which is discussed in linear differential equation with constant coefficient. So to find the complementary function, we have to write the auxiliary equation. So auxiliary equation is d square minus 1 y, taking right hand side equal to 0. So this equation we get d square minus 1 equal to 0. So d square equal to 1. So taking square root on both sides, we get d equal to plus minus 1. So these roots are real. There are the two roots, one is plus 1, second is minus 1. So real and distinct. Okay. So the roots are real and distinct. So therefore complementary function is given by, so for real roots we have to use c e to the power m x. Okay, but instead of x, here the variable is r. Okay, but we don't use r here because r is the variable which is present in given problem. So but here we have to replace r by e to the power z.
So in answer, the complementary function can be written as a function of z. So here we use a variable z. So c1 e to the power mz. So there are the two roots. So we can again write c e to the power mz. इसको बोलेंगे हम c1, इसको बोलेंगे c2, दोनों को ऐड कर देंगे, एक को बोलेंगे m1 और एक को बोलेंगे m2. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा हमारा c1 e टू द पावर m1 इक्वल टू अगर +1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा z और ये मिल जाएगा हमारा -z. ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मिल गए हमको. अभी हमको निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल के फार्मूला जो है वो यूज़ करके हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वैल्यू क्या रहती है हमारी 1/f(d). f(d) मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो d की टर्म है, तो वो टर्म है हमारे पास d² - 1. ये हो गया हमारी f(d) की वैल्यू. और राइट हैंड साइड में जो टर्म है x की, वो हमको यहाँ पे लिखनी है. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मिल गई आपको d² - 1 और राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो है -a e टू द पावर 3z. तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे -a e टू द पावर 3z. ओके, तो इसमें से जो -a है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर ले लेंगे. तो 1/d² - 1 इंटू e टू द पावर 3z. पहला जो टॉपिक देखा था हमने उसमें हमारे पास एक टाइप 1 था और टाइप 1 जो था वो इस टाइप का था 1/f(d) इंटू अगर e टू द पावर ax है तो हमको क्या करना था, इस d को a से रिप्लेस करना था और e टू द पावर ax एज इट इज. मतलब जहाँ पर d है वहाँ पर क्या लिखना है, हमको a लिखना है. वैसे यहाँ पे करना है a मतलब क्या रहेगा, e टू द पावर ax में x का कोएफिशिएंट. अभी यहाँ पे a क्या रहेगा, ये a नहीं रहेगा, ये a अलग है, ये कांस्टेंट है प्रॉब्लम का, ये हमको इसमें का a देखना है. तो z का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो ये हो गया हमारा a. तो d को हमको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 3 से रिप्लेस करना पड़ेगा. तो ये अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हमको मिलेगा -a 1 और 0 होता है क्या देख लो एक बार. अगर 0 होगा तो ये केस फेल हो जाएगी, लेकिन ये 0 नहीं होगा. तो ये आएगा 3 उसका स्क्वायर -1 इंटू e टू द पावर 3z. तो आपको तो डायरेक्ट यहाँ पे सोल्यूशन ही मिल गया इसका. So this can be written as, which is equal to -a 1/3² is 9 -1 e to the power 3z, which is equal to -a/8 e to the power 3z. तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो लास्ट में क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे. सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब y का आंसर. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था हमारा c1 e टू द पावर z प्लस c2 e टू द पावर -z और पर्टिकुलर इंटीग्रल है -a/8 e टू द पावर 3z. ओके, सो एक्चुअली ये प्रॉब्लम का आंसर तो यहाँ पे हो गया, लेकिन फाइनल आंसर अभी तक हमको नहीं मिला, क्योंकि जो प्रॉब्लम का आंसर है वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद का जो इक्वेशन था वो आंसर हमने निकाला z के फॉर्म में. लेकिन ओरिजिनल प्रॉब्लम किस में था हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था y और r में. तो हमारा आंसर भी किस में होना, r में चाहिए. तो आपने जो पुट किया था वो क्या किया था, r इक्वल टू e टू द पावर z और z की जगह पे क्या आया था, log r. तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे. तो y का आंसर आएगा हमारा c1 e टू द पावर z. e टू द पावर z की वैल्यू कितनी है, r प्लस c2. e टू द पावर -z मतलब 1/e टू द पावर z. इसको हम 1/e टू द पावर -z जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/e टू द पावर z और e टू द पावर z कितना है, r. तो इसको हम बोल सकते हैं 1/r माइनस a/8. नाउ e टू द पावर 3z मतलब e टू द पावर z का क्यूब. ओके, e टू द पावर 3z को कैसे लिख सकते हैं हम, e टू द पावर z का क्यूब. और e टू द पावर z कितना है अभी, e टू द पावर z है r. तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, यहाँ पे पुट कर देंगे हम r. तो ये हो गया r का क्यूब. तो लास्ट में सिर्फ हमको क्या करना है, इसको रीअरेंज करके लिखना है. बाकी प्रॉब्लम तो हमारा पूरा सॉल्व हो गया. सो देयरफॉर y इक्वल टू
C1R plus C2 upon R minus A by 8 R cube, which is the required complete solution for given linear differential equation, that is homogeneous और कॉची linear differential equation। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम में कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक स्टेप आपको ऐड करना है कि वेरिएबल कोएफिशिएंट को पहले कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। और इसका एक दूसरा भी टॉपिक है लेजेंड्रेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, थोड़ा स्लाइटली चेंजेस है, लेकिन अगर आपको कॉची आता है तो आपको 100% लेजेंड्रे का प्रॉब्लम आएगा ही। लेकिन ये दोनों आने के लिए आपको पहला जो पार्ट हमने देखा है अभी तक, जो मेथड है CF और PI निकालने के लिए, वो आपको आना ही चाहिए। इसीलिए पहले से आखिरी तक अगर आपको पहले लेक्चर से अगर आप बराबर प्रिपेयर करेंगे तो आपको आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आप डायरेक्ट इस पे जंप मारेंगे तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि CF कैसे निकालना है, मालूम ही नहीं होगा कि इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका PI कैसे निकालना है। तो इसीलिए आपको वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेजेंड्रेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखेंगे और उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।